اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت ریاست مہاراشٹر اور الگ الگ علاقوں سے آ رہی، لیکن اس وقت یہ چھتیس گڑھ کا معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ چھتیس گڑھ میں تبدیلی مذہب پر پابندی کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ تبدیلی مذہب، دھرم پریورتن مخالف بل کا مسودہ بھی تیار ہو چکا ہے اور جلد ہی اب اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ مجوزہ بل میں مذہب بدلنے کی اطلاع 60 ڈیز 60 دن پہلے دینا لازمی ہوگا اور خلاف ورزی پر قید کے ساتھ خطیر جرمانے کی تجویز بھی پیش کی جا رہی ہے۔ چھتیس گڑھ میں تبدیلی مذہب پر پابندی لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ ریاست میں تبدیلی مذہب مخالف بل کا مسودہ پوری طریقے سے تیار ہے، جلد ہی یہ بل چھتیس گڑھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ذرائع کے حوالے سے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ چھتیس گڑھ اسمبلی میں اس کی حتمی پیشکش سے پہلے کچھ ترامیم کی جا سکتی ہے۔ اب تبدیلی مذہب کی اطلاع 60 دن پہلے دینا ہوگی۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 دن سے چرچا شروع ہے کہ کمل ناتھ جلد ہی بی جے پی کی مودی جی کی گود میں بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں بی جے پی ایک گھٹیا حرکت کر رہی ہے، اور وہ حرکت کیا ہے کہ اپوزیشن کو دبانا، کچلنا یا ہر طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ بی جے پی کی گھٹیا نیت یہ ہے کہ اپوزیشن بچے ہی نہ، صرف اور صرف بی جے پی ہی اس ملک پر ستا کے ساتھ اور اقتدار کے ساتھ راج کرے، اور گھٹیا طریقہ یہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آتا ہے انسانیت سے تو کھو کے دے کر آ جائیں، یا پھر ای ڈی اور سی بی آئی اس کے پیچھے لگا دی جائے گی۔ اب بڑے بڑے منتری جو 2-3 سال یا 2-3 بار رہ چکے ہیں تو کوئی نہ کوئی بڑے سے بڑا گھپلا تو ہوتا ہے۔ فائل کھل جانے کا ڈر اور جیل میں جانے کا ڈر ستاتا ہے، آخر وہ بی جے پی کی گود میں چلا جاتا ہے۔ تو کمل ناتھ کو لے کر بھی اس طریقے سے اٹکلیں اور قیاس آرائیاں شروع ہے، مگر کانگریس کے قدآور نیتا اور سابق وزیر اعلیٰ مدھیہ پردیش دگ وجے سنگھ نے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کمل ناتھ کانگریس پارٹی کو چھوڑیں گے اور بی جے پی کی گود میں جا کر بیٹھیں گے، مگر حالات تو بتا رہے ہیں کہ بہت جلد کمل ناتھ کی زندگی میں کمل کھل سکتا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت کسانوں کے آندولن اور مورچے کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں میں نے اس وقت بھی کسان بھائیوں سے بارڈر پر جا کر جب میرا وہاں پر بھاشن ہوا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو کسان بھائیوں، ابھی الیکشن قریب آ رہا ہے، مودی لالی پاپ دے گا، دھوکہ دے گا۔ اس شخص نے اپنے گھر کو تک دھوکہ دیا ہے، اپنی زندگی کو دھوکہ دیا ہے، پورے ملک کو دھوکہ دیا ہے، آپ کو بھی دھوکہ دے گا، لیکن نہ جانے کون سی چیز تھی جس نے کسانوں کو 1 سال کے بعد آندولن سے اٹھا دیا تھا، مگر پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ بی جے پی نے، مودی نے زبردست انداز میں دھوکہ دیا۔ اب 1 سال کے بعد پھر غصہ کسان سڑکوں پر اتر رہے ہیں، اور خبریں ہیں کہ سیوکت کسان مورچہ 21 فروری کو
ब्लैक सियाह परचम के साथ एहतजाज का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चे ने कर दिया है। किसान तहरीक के 6वें दिन हरियाणा में 2 लीडरों को गिरफ्तार किया गया है और इसी तरीके से शंभू बॉर्डर की तरफ किसानों का मार्च जबरदस्त अंदाज में हो रहा है। एक तरफ सरकार किसानों को, जिसे मुल्क का अन्नदाता कहा जाता है, एक तरफ सरकार किसानों को आतंकवादियों की तरह रवैया इख्तियार कर रही है, लाठीचार्ज और आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल कर रही है और किसानों को दबाने और कुचलने की पूरी तैयारी कर रही है। मगर किसानों ने भी सोच लिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर मेरा यकीन है कि मोदी से ज्यादा बेशर्म मुल्क में कोई नहीं है। मोदी भी बेशर्मी और हठधर्मी पर कायम रहेगा और किसानों की बात को नहीं सुनेगा। मुल्क तबाही की तरफ ही जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से हमारे पटल मुफ्ती अबू अय्यूब अंसारी ने बताया कि मुंबई में एक जबरदस्त तालीमी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हजरत मौलाना मुईन मियां ने कहा है कि तालीम का हुसूल ही कौम मिल्लत की तरक्की का सबब है। गुज़िश्ता कल मैंने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में भी इस बात को कहा कि मुसलमानों, अगर ये जानते हो कि मुल्क में तुम पर जुल्म हो रहा है, तुम्हारी मॉब लिंचिंग हो रही है, सताए जा रहे हो, मारे जा रहे हो, लेकिन हमारा मानना है कि तमाम ही समस्याओं का हल और तमाम ही मुसीबतों का हल तालीम है। इसलिए अल्लाह ने 6666 आयतों में सबसे पहले हुक्म दिया है तालीम का। मुंबई में भी जामिया कादरिया अशरफिया के 26वें सालाना इजलास दस्तारबंदी में ईदगाह मैदान में सैयद मुईन मियां और सैयद अनवार अशरफ ने स्टडी सेंटर का इफ्तिताह करते हुए तालीमी प्रोग्राम में तालीम की तरफ कौम को मुतवज्जे करने का काम किया। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है अजीत दादा पवार को लेकर। आप जानते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राज, अजीब माहौल बन गया है। जैसे शिवसेना में आपने देखा होगा कि जिसने शिवसेना को पैदा किया, शिवसेना का नाम भी उससे ले लिया गया, पार्टी भी उससे छीन ली गई। ऐसे ही अजीत दादा पवार की तैयारी थी कि एनसीपी मेरी हो जाए। आखिर राहुल नार्वेकर ने ऐसा फैसला सुना ही दिया। अब अजीत दादा पवार कहते हैं, अजीत दादा पवार को भी अब गद्दारों की लाइन में गिना जा रहा है और अपोजिशन पार्टियां और शरद पवार के चाहने वाले और समर्थक बड़े अजीब अजीब अल्फाज में अजीत दादा पवार को याद कर रहे हैं। हालांकि अजीत दादा पवार का यह बयान आया है कि मैं जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं। एनसीपी फिरकावारियत पर यकीन नहीं रखती और पार्टी की नजर में तमाम मजाहिब के लोग यकसा हैं। वाशी में एक प्रोग्राम में हजारों की भीड़ में अजीत दादा पवार ने ये अल्फाज कहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अजीत दादा आप जो बोलते हैं वही करते हैं, मगर आप जिसकी गोद में जाकर बैठे हैं वो फिरकावारियत, वो नफरतों की राजनीति पर यकीन रखते हैं और उन्हीं की देन है हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करना। जब आप उनकी गोद में जाकर बैठे हो तो आपके समर्थकों का भी वही हाल होगा जो बीजेपी करना चाहती है। अगला दिन इस वक्त रियासत बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। बंगाल की दबंग लेडी लीडर ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान इस वक्त आया है। ममता दीदी ने कहा राम वाम श्याम सब एक हो गए। ममता दीदी ने बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस पर हमला करते हुए अपने गुस्से को निकाला और कहा कि राम वाम श्याम सब एक हो गए। 18 फरवरी को ममता दीदी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और दाएं बाजू की तमाम पार्टियों के कारकुन तशद्दुद फैलाने में मुलव्विस है। इन्होंने बैक वक्त बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि तीनों मिलकर उनकी पार्टी टीएमसी के खिलाफ काम कर रहे हैं और बंगाल में माहौल खराब कर रहे हैं। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आज से 2 दिन पहले हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब यहाँ पर आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आए, महाराष्ट्र में आए, धारनी में थे, फिर खंडवा में थे और फिर उसके बाद मौलाना दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में मौलाना ने सहाफियों से, पत्रकारों से, मीडिया कर्मियों से मुलाकात की और इस मुलाकात में मौलाना ने नौजवान पत्रकारों से मीडिया हाउस के क़याम पर तबादले ख्याल किया कि हमारा अपना मीडिया हाउस होना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने डिजिटल मीडिया के सरगर्म सहाफियों और जिम्मेदारों से भी मुलाकात की और एक मुअस्सिर मीडिया हाउस के क़याम
पर गुफ्तगू की। मौलाना सज्जाद नोमानी ने मिल्लत टाइम्स की अहम जिहाद कामयाबियों का जिक्र करते हुए मिल्लत टाइम्स ने गुज़िश्ता चंद सालों में गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया है, इसका भी जिक्र किया। और इसी तरीके से जितने वहां पर सहाफ़ी जमा थे, हमारी अपनी कौम के जवान पत्रकार जमा थे, मौलाना ने कहा कि हमारा अपना मीडिया हाउस होना चाहिए। आप और हम सब जानते हैं कि इस वक्त गोदी मीडिया को गोदी मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो गोद में जाकर बैठ चुकी है और वो वही बोल रही है जो उन्हें लिखकर स्क्रिप्ट दी जा रही है। गोदी मीडिया ने पूरे मुल्क का माहौल खराब कर दिया है। नफरतें फैलाने का काम गोदी मीडिया ने किया और हकीकतों को छुपाने का काम और मुल्क को धोखा देने का काम इस वक्त गोदी मीडिया कर रही है। और खास तौर से इस्लाम और मुसलमानों की शबीह को खराब करने का काम गोदी मीडिया कर रही है। तो क्यों ना हमारा अपना खुद का मीडिया हाउस हो जहां से हम सच्चाई और हकीकतों को बयान कर सके। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि महाराष्ट्र में भी इंडिया इत्तेहाद, जो इंडिया अलायंस बनाया है, 27-28 पार्टियों का जो इत्तेहाद और महागठबंधन हुआ है बीजेपी के खिलाफ, खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र में भी अब इंडिया इत्तेहाद में सीटों की तकसीम को लेकर रस्साकशी, खींचतान शुरू है। संजय राउत ने लोकसभा की 48 सीटों में 23 पर दावा ठोक दिया है। संजय राउत के बयान पर कांग्रेस ने जवाबी हमला किया है। यानी इस तरीके से यह समझ आ रहा है कि इंडिया अलायंस में महाराष्ट्र में सीटों की बाटाबाटी और सीटों की तकसीम को लेकर खींचातानी शुरू है और लगता है कि इंडिया इत्तेहाद में बड़ी दरार पड़ सकती है और बीजेपी यही चाहती है। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके से वो बीजेपी की फूट करो और राज करो वाली पॉलिसी को कामयाब न होने दें। यह आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं शर्जील इमाम स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर रहे शर्जील इमाम, जिन्हें तकारीर को लेकर एनआरसी और सीए के वक्त में जो माहौल खराब हुआ था, उन तकारीर को लेकर शर्जील इमाम को जेल की सलाखों में डाला गया है और उनकी जमानत को लेकर लगातार खबरें आती रहती है। दिल्ली फसादात में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। शर्जील इमाम की तकारीर का नतीजा दिल्ली फसादात के होने में शर्जील इमाम की तकारीर को नतीजा बताया जा रहा है। खैर, अदालत ने शर्जील इमाम को जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिन लोगों की दिल्ली फसाद के वक्त में वीडियोस क्लियर वायरल हुई थी, जो गालियां दे रहे थे, जो बकायदा हिंदुत्व भगवा टोले को फसादात के लिए उकसा रहे थे और जो अपनी वीडियो में गोलियां चलाते हुए नजर आ रहे थे, जो दुकानों और मकानों को आग लगाते हुए नजर आ रहे थे, जो गोली मारो सालों को के नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे, अफसोस तो यह होता है कि वो तमाम के तमाम भगवा आतंकवादी अभी खुले तौर पर आजादी से घूम रहे हैं। उन पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर आम आदमी चिंता में हैं। तमिलनाडु से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वजीर आला स्टालिन ने इस्लाम कबूल करने वालों को रिजर्वेशन देने पर अब वो गौर कर रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही है। स्टालिन ने अपने हालिया बयान में कहा है कि रियासती हुकूमत पसमानदा तबके, इंतहाई पसमानदा तबके और इस्लाम कबूल करने वाले गैर शनाख्त शुदा तबकों को रिजर्वेशन देने की दरखास्त पर गौर करेंगे। खबर रसा एजेंसी INA के मुताबिक स्टालिन एमए के रहनुमा एमए जौहरुल्लाह की दरखास्त का जवाब दे रहे थे। जुमेरात को असेंबली के फ्लोर पर जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कानूनी माहिरीन से मशवरा करेगी और इस मामले में जरूरी इकदामात करेगी। पसमानदा तबके और इंतहाई पसमानदा तबके और इस्लाम कबूल करने वाले कम्युनिटीज के अरकान को रिजर्वेशन से इनकार पर सवाल उठाया गया था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि DMK हुकूमत इस दरखास्त पर गौर करेगी। एक्चुअल में आप जानते हैं, जैसे मैं खुद ही खाटिक बिरादरी का हूं और हम लोग SC ST में आते थे, मगर आप जानते हैं मैं लगातार इस पर बात करता हूं कि अब खाटिक
खाटिक है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। धर्म बदलने से उसकी माशी पोजीशन नहीं बदलती है, मगर हम पर जुल्म यह किया गया, अत्याचार यह किया गया कि मुस्लिम खाटिक को एससी से निकाल दिया गया और हिंदू खाटिक को उसमें शामिल किया गया। तो ऐसी जितनी नाइंसाफियां है, इसको लेकर स्टालिन का बयान आया है कि इस्लाम कबूल करने वाले पसमानदा तबके को रिजर्वेशन देने पर हम गौर कर रहे हैं।